या Mahakavi Kalidas Library, Kalyan, showed the following position of their accounting. Right. Consider the adjustments given and prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2013. 31st March 2013. 31st March 2013. Then, next, balance sheet as on the date of the library is 1st April 11, that is, this is 11-12 balance sheet. This is 11-12 balance sheet. ठीक है? Capital fund, expenses due, these are outstanding, this is payable. These expenses were payable at the beginning of the year. Expenses were payable at the beginning of the year. ठीक है? So, hopefully, these expenses would have paid during the year. A payable the beginning में, and on a payment side you can check. You can check payment for expenses due. You have paid 7,000. You have paid 7,000. Payment for expense due. So at the beginning of the year, 7,000 was payable. At the beginning of the year, 7,000 was payable. During the year, you have paid 7,000. Therefore, at the end, nothing is payable out of that 7,000. Cancel हो गया, right? यहाँ पे यो क्या हो गया? Cancel हो गया. ठीक है? आगे. So, whatever is payable at the beginning, check on the payment side. If paid, it will get cancelled. Whatever is receivable on at the beginning, check on the receipt side. If it is received, it will get cancelled. Then, furniture, books, investment, cash in hand at cash at bank. Cash in hand at cash at the bank. Next, membership subscription 1,80,000. Income. Then, entrance fees 25,000. Sale of scrap, hire of lecture hall. Lecture hall, library में एक lecture hall रहेगा. Library में hall रहता है, right? Hall रहेगा, which they were giving on the rent basis, right? जिनको अगर वहाँ पे lectures लेने होंगे, कोई seminars रखने होंगे, so they can hire out that lecture hall and library will receive some money. It is the income of the library. Hire of lecture hall on a receipt side, it is the income. Interest on securities income. Electricity charges, postage, books purchase is asset. ओपनिंग में कितने के बुक्स हैं हमारे पास? 5,51,000 के बुक्स हैं. We purchase 80,000 के बुक्स ड्यूरिंग द ईयर. टोटल हो गए, राइट, 6,31,000 के बुक्स. कितने के हो गए? 6,31,000 के बुक्स. देन आगे पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस ड्यू मैंने एक्सप्लेन किया. ये जो प्रीवियस ईयर के, तो प्रीवियस ईयर का पेबल इस ईयर में पेड होने के बाद क्लोजिंग में टू दैट एक्सटेंट इट हैज रिड्यूस्ड. सन्डे एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, दिस 50,000 की सिक्योरिटी, 50,000 की सिक्योरिटी एंड 1 लाख की सिक्योरिटी. यू परचेस 1 लाख की सिक्योरिटी. टोटल सिक्योरिटीज 50,000 plus 1 lakh. Total security is, investment in the securities is, right, 1,50,000. Then there is a furniture, purchase of furniture asset. There is a 72,500 का furniture at the beginning of the year. You purchase 28,000 का furniture. So total furniture at the end of the year is 72,500 plus 28. I think it is 1,05,000. 1,05,000. चेक करना होगा, जो भी होगा देखेंगे. Cash in and cash at bank. Closing assets. During the current year, furniture was purchased on 1st October 12. ये जो purchase हुआ, it is on 1st October 12. Means on this 28,000, you will provide depreciation from 1st October to 31st March for 6 months. 1st October से 31st March, you will provide depreciation for 6 months. Then depreciate furniture at the rate of 10% per annum. हम उस रेट ओपनिंग फर्नीचर जो हमारा है 72,500, we will provide for the entire year because it is from the beginning till the end. And on this 28,000,
right? We will provide depreciation on this 28,000. We will provide depreciation for 6 months. Then depreciate books by 1 lakh minus from asset P&L debit. Membership subscription received during the year includes, oh, this 1,80,000. Can anyone tell me, can 1,80,000 include something of the previous year? ये पॉसिबल है क्या इस क्वेश्चन में? 1,80,000 में कुछ प्रीवियस ईयर का हो सकता है क्या? चेक द क्वेश्चन एंड देन टेल मी. कैन देयर बी पॉसिबिलिटी कि 1,80,000 में से कुछ 10 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए समथिंग इज फॉर द प्रीवियस ईयर? इज इट पॉसिबल? यस. ओके संजना मैडम, व्हाई डू यू थिंक? अदिति क्यों तुझे लगता है यस? अच्छा, वो पहले का यस है क्या? ठीक है सॉरी. हाँ देखो, इफ अगर कुछ प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड है तो ओपनिंग में कहां पे वो आउटस्टैंडिंग दिखना चाहिए? है क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस? नहीं. सो इफ ओपनिंग में कुछ रिसीवेबल नहीं है, ओपनिंग में कुछ रिसीवेबल नहीं है, तो इस ईयर में कहां से आएगा? If always remember, if there is something receivable at the beginning, then only you will receive that receivable in the current year. इस ईयर में प्रीवियस ईयर का तब भी रहेगा जो प्रीवियस ईयर में रिसीवेबल रहेगा. इफ देयर वाज नो रिसीवेबल, यू कैन सी फर्नीचर है, बुक्स है, इन्वेस्टमेंट है, कैश इन एंड कैश एट बैंक, देयर इज नो रिसीवेबल एट द बिगिनिंग. तो इस ईयर में प्रीवियस ईयर का मिलने का कोई सवाल है क्या? नहीं. तो प्रीवियस ईयर का तो जीरो रहेगा. ये देख के समझ में आएगा. सो जो भी 1,80,000 में रहेगा, कुछ तो करंट ईयर का रहेगा, कुछ नेक्स्ट ईयर का रहेगा. देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 15,000 फॉर नेक्स्ट ईयर. हमारा करंट ईयर 12-13 है, 12-13. सो इट इज रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर and 7,500 are outstanding for current year. So out of 1,80,000, 15,000 is for the next year, 1,65,000 is for the current year. So what income में आएगा 1,65,000. कितना आएगा? 1,65,000. 1,80,000 में से इनकम में कितना आएगा? 1,65,000. कुछ रिसीव्ड एडवांस है क्या ओपनिंग में? नहीं. अगर ओपनिंग लाइबिलिटी में रिसीव्ड एडवांस होता वो भी इनकम में आता नहीं है. प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर. Your income is 1,65,000 plus 7,500. It is 1,72,500. It is 1,72,500. Again, capitalize one half of the entrance fees. Capitalize 50% of the entrance fees. Total entrance fees is 25,000. 12,500 income में, 12,500 capital में. ठीक है, let's start. Question number 13 कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, let's start. Right? क्या करना है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. टी फॉर्म में
Then comes balance sheet, closing balance sheet. They are already given you opening balance sheet, so not to worry. Opening balance sheet becomes closing balance sheet except cash, bank, opening stock if there, and if there is subscription in advance, वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में रहेगा, वो इनकम में जाएगा. ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंडिचर में जाएगा, राइट. सब्सक्रिप्शन एडवांस इनकम में जाएगा. नेक्स्ट, दिस इज बैलेंस शीट. As on 2013. Let's start. This is expenditure, this is income. Liabilities and assets. Next, make it fast. Can I start? Yeah. क्वेश्चन, जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट है क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे इनर कॉलम, इफ रिक्वायर्ड अदरवाइज डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो, राइट. एक्सेप्ट कैश, बैंक वो कैंसिल हो जाएंगे. अगर ओपनिंग स्टॉक है वो एक्सपेंडिचर में आएगा. अगर रिसीव्ड एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एनीथिंग इनकम रिसीव्ड एडवांस, तो इनकम में जाएगी. ठीक है, ओके. नहीं, दे हैव गिवन तेजस टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 1,80,000. ऑफ दैट 15,000 इज ऑफ द नेक्स्ट ईयर. इसे एडजस्ट नंबर 3 में लिखा है. ठीक है, गुड. नेक्स्ट, करे कंटिन्यू. यस, आगे कैपिटल फंड. $6,90,000. देन एक्सपेंसेस पेएबल, पेड हो गए ना. एक्सपेंस पेएबल लिखो यहां पे. $7,000 थे माइनस पेड ड्यूरिंग द ईयर. इवन इफ यू डोंट राइट इट, स्टिल इट विल डू. क्या इग्नोर करो उसको स्ट्रेट अवे, कोई फर्क नहीं पड़ता. देन आगे फर्नीचर 72,500. $72,500. देन उसके बाद बुक्स 5,51,000. देन इन्वेस्टमेंट 50,000. $50,000 शायद से, या 51 था. 50,000. ओके. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कैंसिल हो चुके हैं. कैंसिल मतलब उसका इफेक्ट रिसीव पेमेंट में रहता है. ठीक है. ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक बैलेंस, रिसीव पेमेंट के ओपनिंग बैलेंस रहेंगे. मेंबरशिप फीस इनकम में, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 1,80,000. हमेशा की तरह 3-4 दिन हमेशा रखते जाओ, सेफर रहते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. इनकम में 1,80,000. देन नेक्स्ट, इंट्रेंस फीस 25% इनकम, 50% इनकम, 50% कैपिटल फंड.
by entrance fees. फिफ्टी या 25,000 का 50%. 12,500 is income. 12,500 is income and remaining 12,500 is कैपिटल फंड में ऐड होगा. किसी को कोई डाउट है, कोई एडजस्टमेंट समझ में पूछना. एंट्रेंस फीस. अच्छा लिखा है 50%, कोई दिक्कत नहीं. 12,500. देन आगे उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप इनकम. देन हायर ऑफ लेक्चर हॉल 18. देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 4,000. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,000. कितना है रे? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 4,000. कोई उन्होंने हमें नोट में कुछ लिखा नहीं है, एडजस्टमेंट कुछ लिखा नहीं है कि जहां से हम इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं. रेट वगैरह कुछ दिया नहीं है. सो वी विल एज्यूम वट एवर इज द इंटरेस्ट इज राइट, वट एवर इंटरेस्ट दे हैव गिवन इज द फाइनल इंटरेस्ट. देन नेक्स्ट आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,980. देन आगे पोस्टेज 6,100. देन बुक्स परचेस 80,000. एड बुक्स एडिशन. $6,31,000. देन आगे पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ड्यू माइनस हो गया, वो पेड हो गए ना, जीरो हो गए. आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में आएंगे. सन्ड्री एक्सपेंस 10,500. देन इन्वेस्टमेंट एसेट में ऐड होगा. $1,50,000. देन फर्नीचर एसेट में ऐड होगा. एड एडिशन. $500. 1,500. आगे नेक्स्ट कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट्स. कैश इन हैंड इज 6,420 and cash at bank is 7,000. नेक्स्ट जो भी आइटम्स दिए थे हमें रिसेंट पेमेंट में और ओपनिंग बैलेंस शीट में, हमने उनको एक जगह पे लिख दिया. वी पोस्टेड हिम टू वन प्लेस. ठीक है. आगे नेक्स्ट नेक्स्ट आगे
अब एडजस्टमेंट्स करें, यस सर, एक एक। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन मैं यहां पे लिखता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1। हमारे पास फर्नीचर देखो, दिस ईयर we started on 1st April, ended on 31st March, which is 12/13। हमारे पास बिगिनिंग में 72,500 का फर्नीचर था, एंड एट द मिड ऑफ द ईयर 1st October 12 को we purchased furniture for 28,000। we purchased furniture for 28,000। so 72,500 पे 72,500 पे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 72,500 पे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, एंड 28,000 पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। Therefore opening stock, opening balance में, therefore on opening balance of rupees for 12 months, multiply by 7,500 multiply by कितना परसेंट बोला उन्होंने, 10% for the entire year। ओपनिंग बैलेंस पे हमेशा पूरे साल का 7250 एड ऑन एडिशन of rupees 28,000 for 6 months, 28,000 multiplied by 10%, 6 divided by 12, 28,000 का 10% 2,800, हाफ ईयर के लिए 1,400। सो टोटल 8650, इट इज 8650, ठीक है, इट इज 8650। देन नेक्स्ट लेस डेप्रिसिएशन, कितना 8650, 7 8 1 carried 9, is it 91,850, is it 91,850, बराबर 91,850, या गुड। सो 8650 इज द डेप्रिसिएशन। और एक किस पे तो डेप्रिसिएशन देने को बोला उन्होंने हमें क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट नंबर 1 कर दी हमने, यस सर। डेप्रिसिएट बुक्स बाय 1 लाख वो भी करते हैं लेस, मतलब देखो कितने बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं कि 1 लाख का डेप्रिसिएशन करना पड़ा डायरेक्टली, लेस डेप्रिसिएशन। 5,31,000, total depreciation is 1,08,650 to depreciation, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन। पहले लिखेंगे फर्नीचर 8650, देन बुक्स 1 लाख, $1,08,650, देन आगे नेक्स्ट कैपिटलाइज कर दी, एडजस्टमेंट नंबर 4 हो चुकी है, अब 5 थर्ड करनी है। मेंबरशिप फीस
whatever received is not income, 1 lakh it is not income, उसमें से जो current year का income है, so less received for previous year 0, next year 50, it is 1,85,000. ठीक है, 1,80 minus 15, 1,65,000 प्लस ऑलरेडी रिसीव्ड है क्या कुछ? यू मे इग्नोर दिस वर्डिंग, ऑलरेडी रिसीव्ड वगैरह नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हो, मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। अगर ओपनिंग लाइबिलिटी में होता तो इधर आ जाता, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 7,500, 1,70,500, ठीक है, 1,70,500, देन यस 500, okay, one carried 3, 5, 6, 14, 18, one carried 18, 90, 20, 2,08,500. Then 80 plus 50, 30, 30 plus 70, 200, 2 carried, 2 carried, 12, 17, 17, 23, 25, 2 carried, 12 plus 2, 14, 14 plus 8, 22, 22 plus 6, 28, 2 carried, 2 carried, 3, 3 plus 10, 13, 13 plus 7, 20. Is it correct? 76,270. Perfect. 2 surplus. क्या लिखोगे? एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर. ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज सरप्लस. ठीक है, ऐड कैपिटल फंड में सरप्लस 76,270 and therefore your capital fund is 70 तो मुझे दिख रहा है, 0 plus 5 plus 2 7, 2 plus 6 8, 70, 77. I think it is 7,77,000 770. नहीं रे, कुछ तो मेरी बैलेंस शीट अलग वैल्यू पे टैली हो रही है. 770, ओके. 0 plus 2 8, 69 plus 70, 77,000 पे टैली हो रही है मेरी. यहाँ हाँ अच्छा, एडवांस सब्सक्रिप्शन उधर से माइनस करके यहाँ पे लाइबिलिटी में लेना है. तो 15,000, ओके. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी मैंने लिया नहीं होगा इसका मतलब, क्योंकि वो एडजस्टमेंट करके डायरेक्टली मैंने टैली कर दिया ना. सरप्लस ढूंढा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. नाउ बैलेंस शीट शुड टैली. 7,93,770. 93,770.
93,000 है, वो 83 दिखेगा। सेवन 70 आगे। यस यस ले लिया मैंने, चेक करो बराबर है क्या। अच्छा वीडियो हाइड करता मतलब आपको पूरी स्क्रीन दिखा सकता मैं, लिख लेना जल्दी, मेक इट फास्ट। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मेक इट फास्ट। अपूर्व आई विल शेयर द नोट्स, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे कैन वी डू द 14th, लेट मी चेक। ठीक है 14th, ठीक है ओके, वी कैन गो फॉर द 14, नो इश्यूज। चलो 14 करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है 14 करेंगे, लेट्स स्टार्ट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 14, from the following balance sheet and the recent payment account of the Indian Hospital Pune, prepare income and expenditure account for the end date 31st March 2012.
and balance sheet as on that date. We have to prepare income and expenditure account and the balance sheet. Consider the adjustments given below. Consider the adjustments given. ठीक है, adjustments, ठीक है. Outstanding subscription is 6,000. Capitalize the amount of the life membership fees. ये insult है मेरा, ये insult है मेरा. क्यों? उन्हें नहीं लिखते तो हम लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज ही करते ना, क्या लिखने की जरूरत थी क्या? जैसे हमें कुछ समझता नहीं, उनको लगता है आपको आता ही नहीं, इसलिए उन्होंने लिख के दिया कि लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करो. अरे नहीं भी बोलते तो भी हम कैपिटलाइज ही करते ना. समझा नहीं समझा? क्या लिखने की जरूरत थी? अगर इतना ही हमें हेल्प करनी है तो आंसर दे दो भाई, आंसर दे दो और बोलो प्रूव इट कि ये आंसर है. ठीक है, ऐसे राइट. एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं हमें. आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000. Add in expense, add in liability, depreciate land and building 10,000 equipment. Okay, no issues. Okay. Capital fund, medicines bills unpaid. These are payable. Hopefully ये 3,000 साल भर में पेड हुए होंगे. They should have been paid. देखना होगा, I don't know. यहाँ पे कुछ तो मेडिसिन बिल्स का पेमेंट है शायद से. 26,000 का पेमेंट हुआ है मेडिसिन के लिए, बट अगर इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर का है या नहीं है, दे आर नॉट गिवन. सो लाइक 26 में से प्रीवियस ईयर का कितना है, नेक्स्ट ईयर का कितना है, या करंट ईयर का कितना है, कुछ लिखा नहीं है. आई डोंट नो. यू मे एज्यूम 3,000 इज पेड. आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो. सो करंट ईयर का 23,000, नेक्स्ट ईयर का कुछ लिखा नहीं है. दिस कैन बी योर एजम्पशन. इन दैट केस 3,000 कैंसिल होगा और करंट ईयर का 20,000 एक्सपेंसेस में आएगा. जैसे इनकम करंट ईयर की होती है वैसे एक्सपेंस भी करंट ईयर का रहेगा. दिस कैन बी वन एजम्पशन. और अनदर एजम्पशन इज नथिंग इज पेड ऑफ द प्रीवियस ईयर. 26,000 का 26,000 करंट ईयर का है. सो ये 3,000 कैंसिल नहीं होगा, इसमें से कुछ भी पेड नहीं हुआ है. इट विल कंटिन्यू एज इट इज. इट विल कंटिन्यू एज इट इज. अब आपको एजम्पशन करना है इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन. क्या एज्यूम करेंगे? आपके पास दोनों ऑप्शन है. एज्यूम एंटायर 26,000 इंक्लूड्स 3,000 ऑफ द प्रीवियस ईयर, 23,000 ऑफ द करंट ईयर. दिस कैन बी वन एजम्पशन. और अनदर एजम्पशन इज 26,000 डजंट इंक्लूड एनीथिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर. पूरे के पूरे जो है वो इस ईयर के. आगे चलते हैं, क्या करने हम देख लेंगे, डोंट वरी. ठीक है, देखते हैं क्या सोचते हैं उसमें, और क्वेश्चन में कुछ लिखा है क्या उसके हिसाब से. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर 35,000, इक्विपमेंट 60,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000, रिसीवेबल इज 1,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 1,000. देन देखते हैं. सो 1,000 इज आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल एट द बिगिनिंग. 1,000 इज रिसीवेबल एट द बिगिनिंग. उसमें से कितना रिसीव्ड है? सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1,000 फॉर द प्रीवियस ईयर. ओह, तो 65,000 में से प्रीवियस ईयर का 65,000 में से प्रीवियस ईयर का 1,000 है, नेक्स्ट ईयर का 0 है, कुछ लिखा नहीं है. करंट ईयर का 64,000 है. लाइक जैसे यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन बोली है कि 65 का बाइफर्केशन उन्होंने दिया है, यहाँ पे ऐसे 26,000 के बारे में कुछ लिखा नहीं है, और नीचे भी कहाँ पे नहीं लिखा है. तो हमें क्या होना, कंसिस्टेंट रहना है. मतलब जब उन्होंने हमें इतना क्लियरली लिखा है कि 65 में से 1,000 प्रीवियस ईयर का है, अगर ये 3,000 रिसीव्ड होता ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं मेडिसिन के सामने 3,000 इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर. तो आई विल एज्यूम नथिंग इज रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर. जो कुछ भी हो 26,000 करंट ईयर का है. और मैं नीचे नोट लिख दूंगा, इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल एट द बिगिनिंग, वी हैव एज्यूम दैट
It is still unpaid. 26,000 does not include 3,000 of the previous year. सिंपल एक स्टेटमेंट लिख देंगे, राइट? टेंशन कुछ भी नहीं रहेगा आगे, नेक्स्ट ईयर का तो कुछ नहीं आगे. सो ये 1,000 कैंसिल हो जाएगा और इनकम में बचेगा 64,000 आगे. उसके बाद डोनेशंस, रेवेन्यू बोला है, रेवेन्यू मींस इनकम. उसके ऊपर लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 15,000. 15,000 का फर्नीचर यू आर सोल्ड एट 10,000. 15,000 का फर्नीचर यू आर सोल्ड एट 10,000 at a loss of 5,000. Loss will be shown on the expenditure side 5,000. 10,000 का फर्नीचर डिक्रीज हुआ है, फर्नीचर से 10,000 माइनस होगा. देखो एंट्री क्या आती है, when you sell the furniture, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000. यहाँ पे है डेबिट हुआ है, देखो बैंक अकाउंट, इससे मतलब बैंक अकाउंट, उसको डेबिट हुआ है 10,000. लॉस अकाउंट डेबिट 5,000. ये लॉस किस में जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट. 2 फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट. फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, असेट क्रेडिट हो रहा है, मतलब असेट डिक्रीज हो रही है. फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है मतलब असेट डिक्रीज हो रही है, कितने से 15. सो हम फर्नीचर से माइनस करेंगे 15. वी विल डिडक्ट 15,000 फ्रॉम फर्नीचर. ठीक है, 35 में से 15 माइनस होगा, 20,000 एज इट इज बचेगा. ठीक है आगे नेक्स्ट. सो इसको दो जगह पे लिखेंगे, 5,000 इन द लॉस, 15,000 असेट से माइनस करेंगे. असेट से हमेशा क्या माइनस होती है, बुक वैल्यू. चलो ऊपर मार्जिन में लिख देना, राइट? व्हेन असेट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, व्हेन असेट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर लिख लेना. When asset is sold during the year, always deduct book value. Always deduct book value from the asset. Always deduct book value from the asset, and profit and loss to be taken in the income and expenditure. And profit and loss to be taken into income and expenditure. लिखो profit and loss to be taken into income and expenditure. आगे next. Yeah. ठीक है आगे let's start. Let's start. Prepare format.
Then yeah, correct sir. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. 31st March 2000 क्या होना चाहिए? 12. So current year is 11/12. करंट ईयर इज 11/12. ठीक है. देन लिखो बैलेंस शीट एज ऑन. बैलेंस शीट एज ऑन. March 2012. ठीक है. लाइबिलिटीज एंड असेट्स. एसेट्स. लाइबिलिटीज एंड असेट्स. या करेक्ट स्टार्ट. चलो फॉर्मेट हो गया. मेक इट फास्ट. In the books of Indian hospital, yeah, can I start? Let's start. Capital fund 5,02,000. 5,02,000. Then medicine bills unpaid. हमने एज्यूम किया इट इज नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर और एक नीचे लिख देंगे 3,000. लिख दो नोट. ठीक है. राइट. नोट. In the absence of information, in the absence of information, right?
it is assumed that medicine bills unpaid at the beginning, medicine bills unpaid at the beginning medicine bills unpaid at the beginning are, right, outstanding, right, are not paid during the year, and 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 not included in payment of rupees 26,000 या 28,000, let me check, payment of rupees 26,000, payment of rupees 26,000 towards medicine. एक सिंपल नोट लिखने से आपका काम खत्म हो गया. अगर आपको वो मानना है कि 3,000 और 26,000 में वो भी चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट नोट लिखो कि इट इज एज्यूम दैट कि 26,000 इंक्लूड्स 3,000 द प्रीवियस ईयर, इज हेंस राइट वी हैव राइट राइट वी हैव एज्यूम इट इज पेड ड्यूरिंग देयर. कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल इट इज अ करेक्ट, दोनों आंसर करेक्ट है. 26,000 not including the payment of rupees 20,000, right, for medicine. Then आगे let's start. ठीक है, कैश इन एंड कैशर बैंक चला गया. लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakhs. कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह शायद से नहीं है, बाहर लिख दो. देन उसके बाद फर्नीचर 35,000. कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में. फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakhs, फर्नीचर 35,000. कुछ तो सेल है साल भर में, तो इनर कॉलम में. देन नेक्स्ट इक्विपमेंट 60,000. ठीक है. नेक्स्ट आगे है क्या डिप्रेशन, किधर लिखा है डिप्रेशन? अच्छा, एडजस्टमेंट उसके ऊपर है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जनरली नीचे देखता हूँ ना, इस क्वेश्चन में ऊपर है. गुड, इनर कॉलम में शिफ्ट मारती है. आगे नेक्स्ट हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ठीक से लिखेंगे जरा. 1,000 लिखो. प्रीवियस ईयर का रहेगा, ये करंट ईयर 11-12 है, मतलब प्रीवियस ईयर 10-11, 1,000. देन एसेट साइड डन. एसेट साइड हो गया. कैश इन एंड कैश आउट बैंक कैंसिल हो गए. लैंड इनर कॉलम में बिकॉज हमें उसको डेप्रिसिएट करना है. उसके बाद हमें फर्नीचर को सेल किया इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे. इक्विपमेंट को डेप्रिसिएट करना है, इनर कॉलम में लिखेंगे 60,000 को भी. नेक्स्ट हाँ, देन उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में लिख दिया, वो पेड होने वाला है, कैंसिल हो जाएगा. एसेट एक जगह पे गए, लाइबिलिटीज एसेट्स हो गए ओपनिंग वाले. टू कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्ट्रेट अवे इग्नोर. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 65,000 बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. received 65,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 65,000. ठीक है. आगे देन उसके बाद आगे देखेंगे. उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर, मैंने अभी बोला था आपको सेल ऑफ फर्नीचर माइनस
सेल या सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे हम बुक वैल्यू लेते हैं विच इज 15,000. सो अभी भी फर्नीचर कितने का बाकी है 20. अगर हमें डेप्रिसिएशन देना होता तो हम वो 20,000 पे डेप्रिसिएशन देते, ठीक है. अगर देना होता तो हम 20,000 पे देते सेल के बाद. 15,000 का फर्नीचर 10,000 में सेल हुआ, इसलिए रिसीट साइड पे 10,000 10,000 मिला. 5,000 का लॉस है एक्सपेंडिचर में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. दिस इज गुड एडजस्टमेंट. बच्चे इसमें गलती करते हैं. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. नेक्स्ट आगे डोनेशंस रेवेन्यू बोला. रेवेन्यू मतलब इनकम बाय डोनेशंस. डोनेशंस 22,000. देन लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड. कितने की लाइफ मेंबरशिप फीस? 12,500. 12,500. Next, salaries 55,000. Two salaries. Next, then salaries का कोई adjustment है क्या? Outstanding. Okay, in a column है. Good. Medicines 26,000. आगे देन उसके बाद इक्विपमेंट परचेस 10,000 एसेट में एडिशन. Now it is 70,000. Now it is 70,000. आगे नेक्स्ट इक्विपमेंट परचेस एसेट में ऐड हो गया 10,000. कितना हो गया टोटल? 70,000. नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस 4,300 एक्सपेंसेस में. $4,300. Then cash in and cash at bank. Then again 7,700, 15,500. देन हो गया यहाँ तक. रिसीव पेमेंट डन. यस. अच्छा अब हम एडजस्टमेंट करेंगे. सब्सक्रिप्शन में हमेशा एंड में करता हूँ. कैपिटलाइज अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस जो लिखने की जरूरत नहीं थी. आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000. एडिंग एक्सपेंस एडिंग लायबिलिटी. एड आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग कितना? 6,000. टोटल सैलरी एक्सपेंस कितना हो गया? 61,000. एड इन एक्सपेंस एड इन लायबिलिटी. एड इन एक्सपेंस एड इन लायबिलिटी. देयर आफ्टर हो गया 6,000 का. यस सर 6,000 का हो गया. आगे डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10,000. उन्हें वैल्यू खुद होके निकाले, परसेंटेज नहीं दिया. अच्छी बात है, हमारा काम कम हो गया. इट इज 3,90,000. then equipments 15,000.
55,000, 55,000. टोटल डेप्रिसिएशन 25,000 टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में आएगा. $10,000 प्लस 15,000 25,000. नेक्स्ट. उसके बाद ए एडजस्टमेंट 1 करनी बाकी है. 2 तो बाय डिफॉल्ट है. 3 हो गए, 4 हो गए. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन को डील करेंगे. टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 65,000 लेस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. प्रीवियस ईयर का 1,000, नेक्स्ट ईयर का कुछ लिखा नहीं है, सो इट इज 64,000. रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, अगर रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर है 1,000 तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो पहले रिसीवेबल था अगर साल भर में रिसीव्ड होता है, एक क्या हो गया, माइनस फ्रॉम इनकम, माइनस फ्रॉम इनकम, माइनस फ्रॉम असेट. रिसीव्ड 1,000. ओपनिंग का 1,000 पूरा क्लियर हो गया. ओपनिंग का 1,000 पूरा क्लियर हो गया. देन नेक्स्ट ईयर का कुछ नहीं, यहां से माइनस करके 65 से माइनस करके मैं लायबिलिटी में लिख देता. 65,000 से माइनस करके मैं लायबिलिटी में लिख देता, कुछ भी नहीं है. देन आगे, ठीक है, कुछ है क्या यहां से माइनस करने के लिए, रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर और लायबिलिटी में ऐड करने के लिए नहीं. देन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट, अच्छा 64 प्लस ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर. इस ईयर का सब्सक्रिप्शन 11-12 का सब्सक्रिप्शन 10-11 वगैरह कुछ मिला है क्या, देखो है क्या लायबिलिटी में कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस नहीं, तो ये भी 0. ये लिखो, मतलब अब आपको याद रह जाएगा क्या क्या लेना होता है. 2 चीजें माइनस करनी, 2 चीजें ऐड करनी है. जो रिसीव्ड है उसमें से 2 चीजें हटानी है, नेक्स्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का. 2 चीजें ऐड करनी है, ऑलरेडी रिसीव्ड ओपनिंग लायबिलिटी में से, एंड नीचे आउटस्टैंडिंग लिखा होगा वो, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट, which is 6,000, I think. Yes, which is 6,000. ये जो रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर है, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर जो है मैंने रिसीवेबल से माइनस किया. इफ इट वाज रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर तो मैं लायबिलिटी में ऐड करता. अगर ये होता है ओपनिंग लायबिलिटी से इधर आ जाता, एंड 6,000 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, एड इन income, add in asset, add in asset, current year 6,000, add in income, add in asset 6,000. ठीक है, आगे 1 2 3 4 ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन. कोई बच्चे बोल रहे सर डेफिसिट है, लेट मी चेक. देखो एक ओवरऑल देखो, इनकम कितने की है, 70 प्लस 22, 92,000 की इनकम है. 92 एक्सपेंस देखो, 6 प्लस 5 प्लस 61, 76, 76 प्लस 20, वहां पे 96 हो गया. मतलब एक्सपेंडिचर इज मोर, स्टेट अभी डिफिसिट पता चल रहा है 300. देन 5 प्लस 1, या डायरेक्टली लेता हूं, 5 प्लस 61, 5 प्लस 61, 66, 66 प्लस 6, ओ 5 प्लस 61, 66, 66 प्लस 20, 86, 86 प्लस 6, 92, 92 प्लस 4, 96, 96 प्लस 5, 1,01,000 प्लस 20, 1,21,000 आई थिंक. चेक करो मेरी एक्सपेंडिचर की टोटल बराबर है क्या, मैंने डायरेक्टली निकाली इसलिए मैं बोल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं. $1,21,300. ओके, उसमें से 92,000 माइनस करना है, 700 तो रहेगा.
700 रहेगा 1 कैरिड, राइट. 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 11, 1 कैरिड, 8 10 by deficit. Excess of expenditure or income, less, less deficit. $28,700. अच्छा, 15 1 कैरिड, 9 9 प्लस 5 1 कैरिड, 3, इज इट 4,85,800? चेक करो, जस्ट कंफर्म करो, ऐसे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली नहीं लिखने का. 4,85,800 प्लस 3,000 प्लस 9,000, 10,000 ऐड करके 1,000 माइनस करूंगा, 4,94,800. 4,94,800. चेक करो बराबर है क्या? एनीवन? 494, मेरा 200 आया है, नहीं 800 आया मेरा, क्यों? My deficit is wrong. ओके बराबर है. 3 चाहिए, 300 चाहिए ना मुझे, नीचे 3 चाहिए, मतलब ये मुझे 29 लेना होगा फिर, बराबर. So this will change now. थ्री हंड्रेड से कम करना था ना मुझे, तो ये 200 हो जाएगा. बैलेंस शीट भी 300 से कम होगी, 500 हो जाएगा. 492, 494, 200, 494, 200. चेक करो. 494, 200 बराबर. लिखो, मेक इट फास्ट. मैं वीडियो हाइड करता हूं तो सो दैट यू कैन राइट इन डिटेल, ठीक है? लिखो, जल्दी करो. गुड. पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखो. लिखो, जल्दी लिखो, जिनका हुआ है चलो जल्दी करो.
चलो जिनको बैलेंस शीट लिखनी लिखो. Okay, good. Next. Hmm. Meanwhile, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ढूंढो. चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो. यू हैव 5 मिनट्स. खुद होके देख, ट्राई करना है. ट्राई ऑन योर ओन एंड पिंग मी द आंसर. ओके, मैं वो करता हूँ. ठीक है, डोंट वरी. आई विल शेयर दैट व्हाट डू यू मीन बाय एज ऑन और आउटस्टैंडिंग. वो मैं लेता हूँ. पहले ये क्वेश्चन ट्राई ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, go for it. Okay, good. गुड. करो. बच्चे बहुत सारे बराबर आंसर दे रहे. गुड. आई एम रिसीविंग नॉर्मल मैसेजेस टुडे. आई डोंट नो, देयर वाज सम प्रॉब्लम यस्टरडे. बीच में वो सिस्टम लॉग आउट हुआ था, अपने आप हुआ था. सो मे बी आज एकदम प्रॉपर है. सुबह से मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ ना. दिस इज माय 4th लेक्चर टुडे. सो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है. चेक चेक करो ठीक से, ठीक से. ट्राई. नहीं नहीं, आई डोंट. पलकेश, आई वांट कंजम्पशन ऑब्वियसली. हम्म. ठीक है. ओके. आई डोंट नो. एक आंसर 5750 है. वो कैसे आया 5750? मैम आई डोंट नो. तूने कैसे वो 5750 निकाला? अदरवाइज इट इज 8150. कैसे ध्यान देना. व्हाट इज योर कंजम्पशन? ओपनिंग स्टॉक. मैं यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ओपनिंग स्टॉक विच इज 900 प्लस purchases. There are two types of purchases in this. पर स्टेशनरी परचेस नीचे लिखा है
1,200 is outstanding. It is a credit purchase. Adding expense, adding liability. So total purchase is 7,200 plus 1,200. Total purchases are 8,400. So total goods or stationery available is 9,300 less closing stock, which is 1150. So 8150. This is closing stock. So consumption is 8150. Consumption is 8150. I don't know उसका आंसर I think उसने माइनस किया होगा शायद से 7,200 से 1,200. अगर 7,200 से 1,200 माइनस करते हो 1,200 प्लस 900 माइनस 1150. नो मैडम, हाँ तूने वैसे किया था, ध्यान देना. ठीक है, लिखो. आई विल शो द आंसर. ठीक से, इवन इफ यू प्रिपेयर मैडम क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टिल आंसर विल नॉट चेंज. कैसे, ध्यान देना. द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना. इवन इफ यू प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टिल इट इज फाइन. If you prepare creditors account and if you say, sir, this outstanding stationery bill still payable, stationery bill payable is 1,200 is outstanding, stationery bill of rupees 1,220 is outstanding, आप उसको क्लोजिंग क्रेडिटर्स किधर देख सकते हो? टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स. देयर आर नो ओपनिंग क्रेडिटर्स. नेक्स्ट टाइम एक बराबर क्रेडिट पे आएगा. आपने उनको पेमेंट किया, यहाँ पे क्रेडिट पे बाय स्टेशनरी परचेस्ड, ये क्रेडिट पे है. बाय स्टेशनरी परचेस 7,200 हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स टू बैंक या कैश. 7,200. So you can get by purchases 8,400. The purchases will be 8,400. Try to understand. So वही मैं बोल रहा हूं, आप डायरेक्टली ऐड करके ले लो या वैसे भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, योर परचेसेस आर 8,400. देयरफॉर कंजम्पशन, डोंट डिडक्ट दैट मैन. ओपनिंग स्टॉक जो ओपनिंग एसेट में आएगा 900 प्लस टोटल परचेसेस कैश प्लस क्रेडिट, टोटल स्टेशनरी परचेस्ड 8,400, 9,300 less closing stock is 1150, which is 8150. Therefore consumption. $8150 is the consumption. So अगर हमें बैलेंस शीट करनी है तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक लाइन में दिखाता हूं और एक लाइन में बैलेंस शीट दिखाता हूं. This is closing बैलेंस शीट. क्लोजिंग बैलेंस शीट देखते हैं.
क्या है? ओके, इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर आएगा टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, 8150 हमने उधर वर्किंग नोट में किया, देखो एक्सपेंडिचर में आ गया। ये ओपनिंग असेट में, ये परचेसेस इधर से आ गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1150, ये एक्सपेंडिचर में गया और ये पेमेंट में गया। और ये क्लोजिंग क्रेडिटर जो है ना, लाइबिलिटी में देखेंगे, आउटस्टैंडिंग बिल 1200 हो गया। लिखो आउटस्टैंडिंग बिल 1220, ठीक से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो नीड टू प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट, डायरेक्टली ऐड करके ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपनिंग क्रेडिटर्स है नहीं ना वैसे। अच्छा एक सेकंड, वीडियो ऐड करता हूँ, चलो ठीक से लिखो। कंजम्पशन इज नॉट 6950, कंजम्पशन इज 8150, 8150। So there's a difference between purchases, consumption, cash purchases, credit purchases, ठीक है, be careful. हो गया सर? इज इट पॉसिबल दैट आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल इज पार्ट ऑफ द पर, नो नो, कैसे रहेगा? उन्होंने लिखा है ना, उन्होंने क्लियर लिखा है आउटस्टैंडिंग बिल इज 1200, मतलब ये अभी भी पेएबल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 7 इधर सामने ही देखो आपके, 7 ट्राई करो।
ओके, गुड गुड. ओके, ध्यान देना. सो ओपनिंग स्टॉक, $25,000 plus purchases purchases 1,20,000 plus 19,500. कितना आएगा? 1,20,000 plus 19,500, 1,13,500. ठीक है, नीचे लिखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7, बराबर ना? ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेसेस प्लस क्रेडिट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. Consumed. So what is opening stock? 25,000. What are the cash purchases? Drugs purchased during the year 1,20,000. I assume it is on the cash basis. Outstanding bill payable is, suppose it is still to be paid, 19,500. So total, these are the goods or the stationery purchase, drugs purchase, जो भी है, sports equipment. Lace closing stock 27. 137,500. This will be an opening asset. This is on payment side. सेकेंड इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, पेमेंट साइड. देन दिस इज ऑन क्लोजिंग लाइबिलिटीज पेएबल बोल के. दिस विल बी क्लोजिंग असेट एंड ये आएगा एक्सपेंडिचर में. ये आएगा एक्सपेंडिचर में. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. गुड. चलो आज के लिए ठीक है. जो भी एजन वगैरह डिफरेंसेस है आई विल बी टेकिंग इन द माय नेक्स्ट लेक्चर, वो मैं ले लूंगा, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, सैटरडे को मैं वो और मैं उस पर थोड़ा है ना इन डिटेल में बात करूंगा. व्हाट डू मीन बाय एजन? एजन मतलब क्यूमुलेटिव, हमेशा याद रखना, उस तारीख तक सब कुछ एजन. फॉर मतलब खाली उस ईयर का, ऐसे. दैट इज द मेन डिफरेंस. एजन और ऑन दैट डेट इज क्यूमुलेटिव, उस दिन तक का सब. एंड राइट, फॉर द ईयर मतलब खाली पर्टिकुलर ईयर का, ऐसे.
Yes, yes. No, no, we have foundation lecture today, right? We have foundation lecture today. So at 5:45.